difference between thermodynamics, kinetics, and different forms of energy, classification of energy, and how to calculate heat of reaction. So these things we have already discussed. I think there's nothing left in the first chapter to be included, but let me check. Yes, this is already we have done this point. Yes, for equilibrium constant also ब्रीफली हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट जैसे मैंने कहा था कि डिटेल में ये चीजें आप लोग अपने कोरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज होंगे आपके थर्मोडायनेमिक्स और रिएक्शन इंजीनियरिंग, उसमें आप लोग ये चीजें डिस्कस करोगे या उसको स्टडी करोगे। तो इसमें हम लोग इस कोर्स में वी जस्ट नीड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक्स। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको हमने डिफाइन किया था लास्ट टाइम आल्सो, एंड द key parameter which controls the chemical equilibrium, that is equilibrium constant, और उसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। that is basically the ratio of the product of the concentrations of the products divided by the product of the concentrations of the reactants। तो अगर हमारे पास जो reactants हैं they are in gas phase, तो this concentration जी मैं एक मिनट शेयर कर मैं भी ठीक ओके ठीक है। तो I just explained what is the chemical equilibrium and what is the parameter that controls chemical equilibrium, which is called equilibrium constant, and this is a by the way thermodynamic parameter। ठीक है, जबकि अगर हम काइनेटिक्स की बात करेंगे उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर है दैट कंट्रोल्स रेट ऑफ ए रिएक्शन, दैट इज रेट कांस्टेंट, उसको हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं। ठीक है, बट दोनों जो कांस्टेंट है दे आर इंपॉर्टेंट। सो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली। दैट इज द बेसिकली यू कैन सी द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन एंड डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और अगर हमारे पास गैस फेज में रिएक्टेंट्स हैं तो देन दिस कंसंट्रेशन वुड बी रिप्लेस्ड बाय द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच gaseous component। तो the general formula that is delta G is equal to RT log of F, ये जो फॉर्मूला है बेसिकली। तो इसमें ये दो रिलेशंस हैं, these are very important। ये जो this equation that basically relates free energy with the rate equilibrium constant, जबकि ये वाला जो फॉर्मूला है that is to calculate the equilibrium constant। उसके बाद बाकी जो ये है नेक्स्ट टॉपिक्स इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही हमने चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट वी वुड एक्सक्लूड, वी स्किप ऑलरेडी। सो प्लीज केयरफुली नोट द टॉपिक्स व्हिच वी आर कवरिंग इन दिस। ठीक है, so first chapter में there are few topics which we have discussed which are basically required in the subsequent chapters। So from here the chapter 2 would start। chapter 2 is about chemical kinetics। इसमें let me check if there's something important, one or two topics which we would cover। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया ये आपका केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में इसको डिटेल में आप लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली काइनेटिक्स बेसिकली टेल्स यू अबाउट द स्पीड एट विच रिएक्शन केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है ना, तो उसकी मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल एक ही रिएक्शन है वो अगर फॉर एग्जांपल हम वुड को बर्न करें माचिस के साथ उसको या उसको इग्नाइट करने के बाद, तो what would happen, this wood is basically hydrocarbon H and C। so H and C from the wood would react with the oxygen from the atmosphere and it would be converted into H would be converted into water and C would be converted into CO2।
So basically, there would be two products, main products of combustion. These are called combustion products, CO2 and H2O, accompanied by the release of heat. तो combustion की हमने already उसको define किया हुआ है. Basically, combustion is a chemical reaction which is always exothermic. Always heat, which is accompanied by heat release. तो अगर हम इसको combustion की बात करेंगे wood की, so that is the chemical reaction called combustion, जिसका के the rate of reaction is very fast. It takes place within fraction of a second. जबकि अगर हम इसी रिएक्शन को लें, सेम रिएक्शन, वुड जो है वो उसको हम बेसिकली स्पॉन्टेनियसली उसको डिके होने दें. फॉर एग्जांपल उसको हम इग्नाइट ना करें, उसको लेट इट डिके फॉर ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो अगर हम उसको इग्नाइट नहीं करेंगे तो same wood would react with the oxygen of the environment spontaneously, but this reaction would be extremely slow, that it would take millions of years to complete. So reaction is the same, but rate of reaction is totally different. So what is the difference? Basically, जब हम पहले एग्जांपल मैंने आपको जो बताई है उसमें हम उसको जब इग्नाइट करते हैं तो बेसिकली व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड द इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू स्टार्ट. तो जैसे होता है ना, एक गाड़ी खड़ी हुई है तो उसको आपने स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू गिव अ पुश. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उसका दिस इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट, तो व्हाट यू हैव टू डू, उसके जनरेटर को में करंट को जनरेट करने के लिए, सो दैट दिस वुड प्रोवाइड द स्पार्क फॉर द स्पार्क प्लग्स, एंड देन इट वुड स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट रनिंग. जब उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, देन इट स्पॉन्टेनियसली रन. So first you have to push this car or whatever, this automobile, and then once this current would be generated, it automatically will start. So this is same with the combustions of or any chemical reaction. So first you have to provide this activation energy. So some reaction need very low activation energy, so वो spontaneously start हो जाएंगे, जबकि other reaction they need very high activation energy. ठीक है. So this is जब combustion में हम उसको ignite करते हैं start में, so that is basically we provide this activation energy for the reaction to start. तो basically जो rate law है, जो basic formula है for the rate law, that is basically the rate of reaction may be expressed in the following manner. The rate R is the rate of reaction is equal to K percentage. इस reaction के लिए जो ऊपर reaction दिया हुआ है ना, A plus B makes R. So A plus B, there are two reactants which combine together or react together to form a product R. तो इसका जो रेट लॉ है या रेट इक्वेशन है, इसको हम रेट लॉ भी बोलते हैं. तो R is the rate of reaction. So this is basically, in other words, we can say that rate of reaction is directly proportional to the concentrations of the reactants A and B. तो आपको पता है कि जितनी A और B की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना रिएक्शन जो है वो ज्यादा तेजी से प्रोसीड करेगा. तो आपको पता है कि जब रिएक्शन शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो A और B की कंसंट्रेशन इज हाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी वेरी हाई. बट जैसे जैसे A और B जो है वो कंज्यूम होते जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब A और B की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा. ठीक है, तो इट इज अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इट लुक लाइक समथिंग लाइक दैट. स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी हाई, एंड एज द कंसंट्रेशन वुड ड्रॉप, तो अगर हम इसी प्लॉट को ले लें फॉर एग्जांपल, इसको मैं नई स्लाइड में कॉपी कर देता हूँ. तो लेट्स से, तो इस पे अगर हम लेट्स से जो हमारे पास
y डायरेक्शन में, लेट्स से दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन r, और इसके यूनिट्स होते हैं बेसिकली मोल्स पर मीटर क्यूब या पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है, लेट्स से, या मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जनरेशन जो है, उसके ये यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस में वी वुड हैव लेट्स से टाइम, तो लेट्स सपोज इन सेकंड्स। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी, अभी हमने जो रिएक्शन ए और ए प्लस बी रिएक्शन, जनरल रिएक्शन की एग्जांपल ली है, तो स्टार्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाई होगा, जैसे आपको इस ग्राफ से नजर आ रहा है, एज द टाइम प्रोसीड्स, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाई है, और एज द मूव फॉरवर्ड इन टाइम रेट ऑफ रिएक्शन वुड स्लो डाउन, या रेट स्लो डाउन, जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होता जाएगा। तो उसकी बेसिक रीजन है, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल इसमें बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन आर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को साइन ऑफ इक्वालिटी में चेंज करेंगे, वी हैव टू ऐड ए कांस्टेंट, एंड के इज दैट कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेट रेट कांस्टेंट के। तो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, उसमें ये रेट कांस्टेंट इज बेसिकली डिटरमिन द rate of a reaction. So this law is an empirical one based on the observation and unlike the thermodynamic expression for the equilibrium constant. तो इसको जैसे मैंने अभी बताया ना, ये जो टॉपिक है, इसको इस सेमेस्टर में आप लोग रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो ना? आर यू हैविंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इंजीनियरिंग दिस इन दिस सेमेस्टर? यस सर। यस सर। तो ओके, एक तो आप रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, दूसरा हम रिएक्शन इंजीनियरिंग की लैब भी है, ठीक है, जो कि मैं आपको कराऊंगा। तो ऑब्वियसली आफ्टर मिड टर्म एग्जाम दैट वुड स्टार्ट, तो उसमें भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो है ये रेट लॉ जो है ना, इसको एक्सपेरिमेंटल डाटा से डिटरमिन करेंगे। तो देर आर दीज टू टॉपिक्स, ये दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं रिएक्शन इंजीनियरिंग और उसकी लैब, उसमें ये चीज़ अब हम काफ़ी डिटेल में करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसको बस थोड़ा सा टच करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो बेसिकली दिस इज अ जनरली जो है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, उसका रिलेशन जो है कंसंट्रेशन से वो डिफरेंट हो सकता है समटाइम्स। ये जो इसके ऊपर जो एक एक्सपोनेंट आपको नजर आ रहा है ना नीचे, ये सी ए, उसके ऊपर एक पावर भी है, ठीक है, ए एंड बी। So this power could be 1, 2, 0, it could be any power, and that depends on the experimental data जहाँ से आप ये rate law derive कर रहे हैं, ठीक है। So what normally we do, we take this A and B in the lab, in a small lab reactor, और उसके अंदर हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, उसके बाद हम उसकी कंसंट्रेशन को या कन्वर्जन को मेजर करते हैं, ठीक है, यूजिंग टाइट्रेशन और अदर टेक्निक्स आफ्टर स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर बैच रिएक्टर है तो आप इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन ए और बी की आपको पता है, उसके बाद आफ्टर स्मॉल टाइम आप उसको दोबारा मेजर करेंगे, देन सो व्हाट यू डू, यू टेक सैंपल्स फ्रॉम द रिएक्टर आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, उसके बाद आप सारी कंसंट्रेशंस को फिर प्लॉट करते हैं, ठीक है, वर्सेस टाइम, और उसके ऊपर फिर आप जो है ना वो थ्रू कर्व फिटिंग, तो आप उसके जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं वो डिटरमिन करते हैं, ये जो ए और बी है। तो ये जैसे मैंने बताया, इसको डिटेल में हम करेंगे लैब में। तो यहाँ पे हम आपके लिए इतना, ये जो फर्स्ट यहाँ तक है ना, फर्स्ट पेज, दैट वुड बी इनफ, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें हम आप रिएक्शन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। तो आपने इसमें ये जो सेकंड चैप्टर है उसमें ओनली फर्स्ट पेज यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर और जस्ट रीड इट केयरफुली। तो ये हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने इस कोर्स में, बाकी हम नेक्स्ट जो इसका रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, वो दैट वुड बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने जो सिलेक्टेड टॉपिक्स किए हैं थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड, और फिर दूसरे में है ओनली
फर्स्ट पेज किया है, तो बाकी हमने स्किप किया। तो यहाँ तक जो अभी हमने किया है ना, इससे रिलेटेड अगर कोई आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो यू कैन आस्क, और अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द फर्स्ट यूनिट प्रोसेस, नाइट्रेशन। ठीक है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, केमिकल प्रोसेस काइनेटिक्स, क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे पास टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और as I have already mentioned, this book is basically written for the chemistry point of view, और इसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल हैं जो कि हमारा केमिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर आउट ऑफ स्कोप, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे उस तरह। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर इज बेसिकली ऑल्सो अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द यूनिट प्रोसेसेस, बट इट अ लिटिल बिट इन मोर डिटेल एज कम्पेयर टू चैप्टर 2 जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो जो our first unit process जो हम which we are going to talk about, that is nitration। ठीक है, and this is a very important one also। तो इसमें सबसे पहले जैसे आपके कोर्स आउटलाइन में मेंशन किया हुआ है कि बेसिकली तो बेसिकली there are certain aspects of the or of each unit process जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें मेनली जो है ना वो तीन है, जिसमें थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स उसकी या कमर्शियल सिग्निफिकेंस जो है। तो ये वाले जो नाइट्रेशन आप देखें यहाँ से तकरीबन यहाँ तक है। ठीक है, तो दैट इज इंट्रोडक्शन, नाइट्रेटिंग एजेंट्स, एरोमेटिक नाइट्रेशन एंड ऑल दैट। थर्मोडायनामिक्स है, काइनेटिक्स और मैकेनिज्म, तो इसको हम लोग अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं। ठीक है, so first of all is the definition of the nitration। so nitration की जो definition है that is very simple। it is that the addition or introduction of one or more nitro groups into a reacting molecule। so that is basically definition of the nitration। so nitro molecule basically क्या होता है, NO2। तो जब हम NO2 जो है इसको किसी दूसरे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में इसको ऐड करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड nitration। so nitro group may become attached to carbon to form nitroaromatic or nitroparaffinic compounds। it may become attached to oxygen to form nitrate esters, or it may become attached to the nitrogen to form nitramine। so basically ये जो इन दो तीन लाइंस में डिस्क्राइब किया हुआ है, दैट इज बेसिकली ये जो NO2 ग्रुप है, जब आपका जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, उसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी होती है, कार्बन भी होता है, या नाइट्रोजन भी हो सकती है। ठीक है, तो जो नाइट्रो कंपाउंड है वो अगर कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनेगा वो होगा नाइट्रो एरोमेटिक और नाइट्रो पैराफिनिक कंपाउंड। और जब वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा देन इट इज बिकम नाइट्रेट एस्टर्स, और व्हेन इट अटैच इटसेल्फ टू द नाइट्रोजन देन इट इज कॉल्ड नाइट्रामीन। तो इसके आगे हम एग्जांपल देकर देखेंगे। ठीक है, तो इन द नाइट्रेशन प्रोसेस द एंटरिंग नाइट्रो ग्रुप में रिप्लेस a number of different monovalent atoms or groups of atoms। in this chapter we shall be concerned only with those nitrations in which nitro group replaces a hydrogen atom, since these are the reactions of greatest technical importance। so although there are जब नाइट्रो ग्रुप NO2 किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड होगा तो ऑब्वियसली it has to to make its room, its place, it has to remove some other atoms in the molecule। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोकार्बन में HC है या अल्काइल ग्रुप के साथ RHC होता है ना, तो उसमें आपको पता है कि it could replace hydrogen also, it could replace some other compound। but इस चैप्टर में we would only focus on the types in which it would replace only hydrogen, but other we will not discuss। ठीक है, so we will talk only about when nitro group in a hydrocarbon replaces hydrogen। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जगह पे
ये NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे हम एग्जांपल लेते हैं। अमंग द रिएक्शंस इन विच द नाइट्रो ग्रुप रिप्लेसेस एटम्स और ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन, द फॉलोइंग आर शोन बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशन। तो ये जो ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है उसकी एग्जांपल ये है नीचे, ठीक है। Certain alkyl halides can react with the silver nitrate to form the corresponding nitrate esters or with silver nitrate to form the corresponding compound. अब फॉर एग्जांपल ये नीचे जो एग्जांपल दी हुई है इसमें तकरीबन 4 एग्जांपल इसकी दी हुई है, ठीक है। तो फॉर यू इट इज इनफ टू रिमेंबर एटलीस्ट 2 रिएक्शन एग्जांपल्स। आपको जब आपसे नाइट्रेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो उसमें आपको ऑब्वियसली एग्जांपल्स देनी होंगी, तो एटलीस्ट 2 आपको एग्जांपल इसमें आप प्रिपेयर करें, कोई भी जो आपको इसमें इजी लगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है एग्जांपल है उसमें जो अल्काइल क्लोराइड है बेसिकली RCl, इट रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म RONO2। अब इसमें आप देखें, इसमें जो NO2 ग्रुप है ये बेसिकली दैट इज नाइट्रो ग्रुप, ये जो NO2 ग्रुप है, ठीक है। ये इसने क्या किया है, इसने बेसिकली RCl है, इसमें हाइड्रोजन को इसमें सॉरी क्लोरीन को रिप्लेस किया, ठीक है। इसने क्लोरीन को रिप्लेस करके तो इट वुड बिकम नाउ, पहले RCl था तो दैट वुड बिकम RONO2, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास बन जाएगा AgCl सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। बिकॉज ये जो NO3 था सिल्वर नाइट्रेट का, इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, ठीक है। और प्लस वी हैव NO2 ग्रुप, because according to the definition the NO2 group, addition of NO2 group would make this nitrate, ठीक है। yeah, it would be called nitration. So this is basically NO3 जिसमें एक ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी और remaining we have nitro group, so that would attach itself with the R replacing chlorine, ठीक है। और ये जो remaining silver होगा that would combine with the chlorine to make silver chloride AgCl, ठीक है। So I think that is one example would be enough for you, although we have another example जिसमें सिल्वर नाइट्रेट के अलावा दूसरा जो है दैट इज आई थिंक सिल्वर नाइट्राइट, इसको हम बोलते हैं। ये सिल्वर नाइट्रेट है एंड दैट इज सिल्वर नाइट्राइट। इसमें वी हैव अगेन क्लोरीन इज बेसिकली रिप्लेस्ड, तो RNO2 AgCl। तो अब दोनों एग्जांपल्स कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अब ये तो थे एलिफेटिक कंपाउंड्स। आपको पता है स्टेट चेंज जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, जो स्टेट चेन है उसको हम एलिफेटिक बोलते हैं और जो रिंग शेप है उसको एरोमेटिक बोलते हैं। इसमें जो हम इस चैप्टर में ज्यादातर जो नाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे दैट वुड कोरिस्पॉन्ड टू एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक नाइट्रेशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एरोमेटिक की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज यू कैन से नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, आल्सो यू कैन से अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कंपाउंड है जिसकी नाइट्रेशन करवाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, ये बुक में लिखी नहीं हुई। और जो कंपाउंड जो है जो नाइट्रो ग्रुप को सप्लाई करता है या प्रोवाइड करता है या डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में दैट इज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जिसकी हमने नाइट्रेशन करवानी है और दैट इज नाइट्रेटिंग एजेंट, और रिजल्टिंग जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है, या नाइट्रेटेड कंपाउंड। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ईच कंपाउंड। अब जब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो फॉर एग्जांपल एरोमेटिक सीरीज सल्फोनिक एसिड और एसिटाइल ग्रुप कैन इन सर्टेन इंस्टांसेस बी रिप्लेस्ड एज शोन इन द। अब ये वाला जो है दैट इज बेसिकली बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी सिंपल एग्जांपल हम बेंजीन को भी ले सकते हैं, ठीक है। बेंजीन आपको पता है सिंपल रिंग होता है, ठीक है। और इसमें जो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, SO3H ग्रुप अटैच हुआ हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो ये हम आगे सल्फोनेशन में पढ़ेंगे कि जब हम उसमें SO3 ग्रुप, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप इज कॉल्ड बेसिकली सल्फोनेशन लाइक नाइट्रेशन। तो अभी आप जस्ट इसको फॉरगेट अबाउट दैट। तो बेसिकली इस केस में जो है
नाइट्रेटिंग एजेंट जो है दैट इज नाइट्रिक एसिड HNO3। इस केस में क्या था, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें नाइट्रिक एसिड जो है दैट वुड प्रोवाइड, दैट इज द डोनर फॉर द NO2 ग्रुप। तो इसमें आप देखें कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है इसमें हमारे पास 2 NO2 ग्रुप जो हैं इसमें से अटैच हो जाएंगे, रिप्लेसिंग SO3H। ये इसको एक SO3H को रिप्लेस करके एक NO2 यहाँ पे आ गया ये वाला, और एक NO2 इस पॉइंट इस जगह पे आ गया, और बाकी इट वुड अगेन in the next step. So basically this is a consecutive reaction. तो पहले स्टेप में this SO3H would be replaced, ठीक है, by NO2, और यहाँ पे दो जगह पे NO2 ऐड होगा। नेक्स्ट स्टेप में this SO3H would be replaced. So ultimately you can see all SO3H would be replaced by NO2 groups, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल है। तो जैसे मैंने कहा कि 2 examples would be enough. So ideally जो है it would be गुड के एक आप एलिफेटिक कंपाउंड की एग्जांपल याद कर लें और दूसरी एरोमेटिक, ठीक है। तो इसमें जो है दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये फर्स्ट वन दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, HNO3 is a nitrating agent and that is the nitrated compound. So nitration is one of the most important reaction in industrial synthetic organic chemistry. Not only do nitration products find wide applications as solvents, dye-stuff, अब ये वाली जो few lines and these are the industrial application or uses of the nitration या nitrated compounds, ठीक है। तो इससे पहले हमने definition की है with examples, और उसमें NO2 addition of NO2 group या nitro group is basically nitration। उसके बाद एग्जांपल्स की हैं, उसमें फिर व्हाट इज द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, व्हाट इज द नाइट्रेटिंग एजेंट, उसकी डेफिनेशन हमने की है। उसके बाद उसकी इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस। तो बेसिकली नाइट्रेटिक कंपाउंड जो हैं बेसिकली दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, dyestuff, pharmaceutical, explosive, but they are also serve as useful intermediates for the preparation of other compounds, particularly amines या amines which are prepared by the reduction of the corresponding nitro compounds. तो केमिकल जो हमारे बनते हैं बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन आर कॉल्ड एंड प्रोडक्ट्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो फाइनल फिनिश्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे सॉल्वेंट या डाइज है, फॉर एग्जांपल हम डाइज यूज करते हैं, तो डाइज आर डायरेक्टली यूज्ड बाय, for example, in textile industry or even at home some people do, but some chemicals are used to uh, you know to to produce the chemicals which are intermediate chemicals which are not directly used by the consumers, but they are used in by some other industries to make other chemicals। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है मोस्टली एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर्स उसको यूज नहीं करते, मोस्टली इट इज यूज इन द इंडस्ट्री। तो दिस इज इंटरमीडिएट केमिकल, ठीक है। तो इसी तरह नाइट्रेटेड कंपाउंड भी दो तरह के हैं, एक तो फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे भी जिसमें डाई स्टफ है, फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स, एक्सप्लोसिव्स, इसके अलावा इंटरमीडिएट्स हैं। और सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव में जो आपने नाम सुना होगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, दैट इज हाईली एक्सप्लोसिव। जब आप बेंजीन को सिंपली उसकी नाइट्रेशन करवाएं तो दैट फॉर्म्स नाइट्रोबेंजीन, तो दैट इज हाईली एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रेटिंग एजेंट्स। अभी हमने बात की थी, ये ऊपर वाली एग्जांपल में हमने दो तरह के नाइट्रेटिंग एजेंट्स की एग्जांपल को डिस्कस किया। वन इज ये जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, दैट इज नाइट्रेटिंग एजेंट। उसके बाद नाइट्रिक एसिड है। तो बेसिकली नाइट्रेटिंग एजेंट जो है वो ऐसा कंपाउंड है विच प्रोवाइड दिस NO2 ग्रुप, ठीक है ना। तो वो किसी भी नाइट्रेटेड जो कंपाउंड है उसमें हो सकता है, वो नाइट्रिक एसिड में हो सकता है, या दूसरे जो नाइट्रेटेड कंपाउंड्स हैं जिसमें फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट है या नाइट्रेट्स उसको हम बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स कुड बी यूज्ड। So a variety of reagents can be used to affect nitration. These include fuming, concentrated and aqueous nitric acid. So सबसे जो strong nitrating agents है, that is the nitric
strong nitric acid and mixture of nitric acid and sulfuric acid. This is called mixed acid nitrating agent, and that is used mostly. This is used because this is a mixture of the sulfuric acid and nitric acid is cheap and is abundantly available, and this is very strong nitrating agent. ठीक है ना, some nitrating agents are weak जो कि इतना strong reaction नहीं करेंगे, ठीक है, जबकि ये वाला जो nitrating agent है it's very strong. So the first one is the pure nitric acid, second is the mixture of the nitric acid and sulfuric acid. उसके बाद next example है acetic anhydride, acetic acid, phosphoric acid and chloroform. Nitrogen pentoxide N2O5 and nitrogen tetroxide N2O4 are also used in the certain instances. In order to make an intelligent choice of the nitrating system for a particular nitration, it is desirable to know what species are present in the various systems and to understand the mechanism. So आपको जैसे मैंने अभी mention किया, there are so many nitrating agents. So which nitrating agents you should use? So that depends on the so many factors. Number one, what is the organic substrate जो आप यूज करने जा रहे हैं, जिसकी हम आपने नाइट्रेशन करवानी है, ठीक है, तो उस पे भी डिपेंड करता है, या उसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है. So choice has to be made. For example, one nitrating agent may be suitable for one type of, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल किए, मे बी ये जो ऊपर वाली एग्जांपल है इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया, सो मे बी ये जो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है इसमें अगर हम सिल्वर नाइट्रेट यूज करें तो मे बी इट विल नॉट गिव अस द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है. तो इसके लिए हमें नाइट्रिक एसिड, सो ये जो सबस्ट्रेट है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी आपने नाइट्रेशन करवानी है, उस पर डिपेंड करता है विच नाइट्रेटिंग एजेंट शुड बी यूज्ड. सो आगे जो ये जो एग्जांपल है इसकी डिटेल उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज हमारे पास लिमिटेड टाइम है, सो वी हैव टू डिस्कस ओनली द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. इसमें हम सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द मिक्स्ड एसिड की एग्जांपल एंड द इफेक्ट ऑफ वाटर, ये वाला जो है, ठीक है. तो दिस पैराग्राफ, अब आपने केयरफुली चीजें, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपने नोट करनी है जो जो चीजें हम स्किप कर रहे हैं. तो फर्स्ट चैप्टर में पहला जो पेज है वो हमने ऑलमोस्ट पूरा किया, ठीक है, यहाँ तक. उसके बाद नाइट्रेटिंग एजेंट्स में ओनली फर्स्ट पैराग्राफ, जस्ट द नेम ऑफ द नाइट्रेटिंग एजेंट्स, नॉट द डिटेल ऑफ देम. उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिस वन, जो कि दिस डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, या दूसरे लफ्जों में ये जो है ओनली द मिक्स्ड एसिड प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है. जैसे द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड एसिड नाइट्रेटिंग एजेंट, क्योंकि इसमें दो एसिड्स हैं, ठीक है. अब ये जो दोनों एसिड्स हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से द रेट ऑफ नाइट्रेशन जो है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, उसको चेंज करने से वो कम या ज्यादा होता है, ठीक है. इसको हम इस पैराग्राफ में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सल्फ्यूरिक एसिड and percent of nitric acid molecules that are ionized to form nitroions is shown in figure 4. तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, ठीक है. जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड होगा, आपको पता है ना सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिकली व्हाट इज द सल्फ्यूरिक एसिड, सिंपली आप में से कोई बताए अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, व्हाट इज द सल्फ्यूरिक एसिड. Sulfuric acid is nothing but SO3 gas dissolved in water, H2O. ऐसे ही ना, basically that is sulfuric acid, H2SO4. तो when you sulfur trioxide gas जो है उसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, that would make sulfuric acid, ठीक है.
तो अब आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें क्या होगा, वो आप सल्फ्यूरिक एसिड को डिल्यूट किस तरह करते हैं, यू सिंपली ऐड वाटर। आपने लैब में किया होगा अपना मैट्रिक अपने इंटर में या कॉलेज या स्कूल में, कि आप यू सिंपली ऐड water to the sulfuric acid to make it dilute, rather all acids are diluted like that। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते जाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस इन अदर वर्ड्स द स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड would have less amount of water while dilute sulfuric acid would have higher amount of water। तो इसको आप दो तरह से देख सकते हैं, हम इस तरह से भी कह सकते हैं effect of water on the ionization of nitric acid या effect of sulfuric acid concentration, ठीक है ना, दोनों तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें we say that the relationship between the amount of water present in sulfuric acid, इसका मतलब ये है कि अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा होगी that means sulfuric acid is dilute, अगर वाटर की अमाउंट कम है that is sulfuric acid is concentrated। तो ये जो concentration है sulfuric acid की that basically affect the rate of ionization of the nitric acid। तो बेसिकली आपको पता है कि ऊपर जैसे हमने डिस्क्राइब किया कि बेसिकली नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ द SnO2 ग्रुप जो नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा तेजी से नाइट्रिक एसिड आयोनाइज होगा, आयोनाइज का मतलब है कि इट वुड बी ब्रोकन इनटू H+ एंड NO3+ आइंस या सॉरी OH- एंड NO2+ आइंस, ठीक है। तो जब ये आयोनाइज होगा देन इट वुड प्रोवाइड दिस NO2+ ग्रुप नाइट्रो ग्रुप। तो जितना ज्यादा ये तेजी से आयोनाइज होगा, जितना ज्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली आयोनाइज होगा नाइट्रिक एसिड, उतना ही नाइट्रेशन रेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ के मुताबिक ये है कि on y-axis we have the percent of the ionization of the nitric acid, means कितने परसेंट जो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड आयोनाइज हुआ है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास 10 लीटर्स है फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड है हमारे पास शुरू में, तो उसमें लेट्स से अगर 4 लीटर्स आयोनाइज हो गया, 6 लीटर्स अभी अनआयोनाइज पड़ा हुआ है, दैट मीन्स दैट इज 40% नाइट्रिक एसिड इज आयोनाइज्ड, ठीक है। तो y एक्सिस पे बेसिकली द परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड, जबकि x एक्सिस पे बेसिकली है परसेंट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इन द मिक्सचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये 90% है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब ये है कि इन द 100% जो हमारे पास जो एसिड है 1 लीटर ऑफ एसिड या 10 लीटर्स ऑफ एसिड, उसमें 9 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड है, जबकि 1 लीटर हमारे पास वाटर होगा उसमें, ठीक है। अगर हमारे पास ये हम लेट से ये जो x एक्सिस पे सल्फ्यूरिक एसिड परसेंटेज हम ले रहे हैं 50 फॉर एग्जांपल, तो उसका मतलब है 50% सल्फ्यूरिक एसिड 50% वाटर, जबकि यहाँ पे जो रेंज दी हुई है दैट इज फ्रॉम 86% टू ऑलमोस्ट 100%। तो 94 पे ये है कि वी हैव 94% सल्फ्यूरिक एसिड व्हाइल रिमेनिंग 6% इज वाटर। तो ये x और y में जो कंपोनेंट्स हैं इसकी आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर आपको इसकी क्लियर नहीं हुआ तो आई वुड एक्सप्लेन इट अगेन। तो शुड आई रिपीट इट अगेन और आपको समझ आ गई? जी तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नाइट्रिक एसिड ऑन द y एक्सिस, द सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द x एक्सिस। तो जो टॉपिक होगा आप इससे किसी तरह और आ रहा है अपनी माइक ऑन कर का माइक ऑन और आ रहा है, ठीक है, और माइक ऑफ कर प्लीज। चलें, थैंक यू, ओके। सो ये जो ग्राफ है बेसिकली इसका टॉपिक है, जो इसका हेडिंग होगा दैट वुड बी इफेक्ट ऑफ वाटर या इफेक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन ऑन द आयन। ये आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन
नहीं सर, नहीं समझ आ रही वो ठीक है, माइक ऑन है तो बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, मैंने आपसे अभी बोला कि आप में से किसी एक स्टूडेंट का माइक ऑन है, प्लीज तो ऑफ कर, ठीक है? या फिर मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा, तो बेटर कि आप खुद से अपने माइक को ऑफ कर दें। अगर आपने क्वेश्चन करना होगा तो आप सर आप इसे म्यूट कर दें। प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर माइक ऑन करूँगा तो मेरा ये भी हो जाए, क्योंकि मैं मोबाइल से जो है ना ऑडियो को कनेक्ट कर, तो आप प्लीज सब लोग अपना जो भी लोग सुन रहे हैं अपने माइक तो अपने माइक को ऑफ करें, ठीक है? ये एक बंदा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सॉरी, ओके, तो अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? सर आ रही है। चलें, यस सर। जी सर। ओके ओके। सो अभी इसमें ये जो मैं आपको बता रहा था, ये प्लॉट जो है दैट बेसिकली डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ वाटर और इफेक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन। सो इसमें ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है? तो वी जस्ट नाउ रीड एंड briefly discuss, and we continue in the next class also, the relationship between the amount of water percent present in the sulfuric acid and the percentage of nitric acid molecules that are ionized to form nitrile। इसको basically NO2 plus जो है इसको हम nitrile आयन बोलते हैं, जो कि that is basically responsible for the NO2 plus। तो basically इसको हम नाइट्राइल या नाइट्रोसाइल आयन बोलते हैं, ठीक है? नाइट्राइल और नाइट्रोसाइल आयन, ये आपने इसका नाम याद रखना है। दिस आयन बेसिकली NO2 प्लस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रेशन, ठीक है? तो इसके ये दो नाम है। ये टिपिकल क्विज का क्वेश्चन आपको क्विज में इस तरह पूछा जा सकता है। तो बेसिकली the ionized to form nitrile ion is shown in figure 4 in this graph. In the solution weaker than 86% sulfuric acid, the ionization of nitric acid is very low or slight, but rapidly rises as the sulfuric acid becomes more concentrated. In about 94% sulfuric acid, the nitric acid is particularly completely ionized to nitrile ions. अब इस ग्राफ में आप देखें, if the sulfuric acid की concentration is less than 86%, means on the left side of this point, ये जो 86 लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड पे अगर होगा तो रेट ऑफ आयोनाइजेशन यू कैन सी इज लेस देन 10%, मींस क्लोज टू जीरो, इट्स वेरी वेरी लो, ठीक है ना? ये पॉइंट जो है, but as the concentration, as you move from the right side, for example, if the concentration of sulfuric acid increases than 86%, इस साइड पे तो आप देखें कि rate of ionization increases very sharply. So you can see at 94% sulfuric acid concentration, the ionization जो है वो it reach almost 100%। जो almost 100% जो एसिड है वो completely आयोनाइज हो जाता है, जो नाइट्रिक एसिड है, into OH माइनस
एंड NO2 प्लस आइन, ये जो NO2 प्लस नाइट्रोसाइल आइन, जो नाइट्राइल या नाइट्रोसाइल आइन इसमें, ठीक है। तो अब आप देखो इस पॉइंट के ऊपर जो है ना, ये जो 88% है, 88% के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट 40% आयोनाइजेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। 86% के ऊपर इट्स ऑलमोस्ट 10%, 90% के ऊपर इट्स ऑलमोस्ट 80%, 94 के ऊपर इट्स ऑलमोस्ट 100%। तो ये जो 86 और 94% के दरमियान है, वी हैव मैक्सिमम रेट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द, लेट्स से इफ वी हैव, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 10% हमारे, सॉरी 10 लीटर्स है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड 86% होगा तो दिस इज 10%, इसका मतलब है 1 लीटर ऑफ द नाइट्रिक एसिड आउट ऑफ 10 लीटर्स वुड बी आयोनाइज्ड, ठीक है। और जबकि इस पॉइंट के ऊपर 88% के ऊपर 4 लीटर्स वुड बी आयोनाइज्ड, और 90% के ऊपर वी हैव 6 लीटर्स आयोनाइज्ड, 92 के ऊपर वी हैव 8 लीटर्स वुड बी आयोनाइज्ड, और 94 ऊपर ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10 लीटर्स वुड बी आयोनाइज्ड। तो ये जो इसकी रीजन क्या है, वाई दिस इज, इस रेंज के अंदर आयोनाइजेशन रेट ज्यादा होता है, इससे कम या ज्यादा में कम हो जाता है, तो इसको हम लोग आप क्विकली इसको रीड आउट कर लें, ये जो पैराग्राफ है, बट इसको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एक पैराग्राफ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा अलॉन्ग विद दिस डायग्राम, ये आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Nitrile ions have also been detected spectroscopically in 100% nitric acid, but their concentration is very low. At minus 40 degree centigrade, nitric acid is said to contain 1.2%. ये आप जस्ट रीड आउट कर लें, बट इसकी रीजन क्या है उसको हम लोग, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, वाई इट इज तो, ठीक है। तो बेसिकली क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि जब सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है ना 86% से, ठीक है, इसका मतलब है कि उसके अंदर वाटर ज्यादा है, ऐसे ही है ना। 86% से कम जो जब सल्फ्यूरिक एसिड होगा ना, ठीक है, तो उसका मतलब है कि देयर इज टू मच वाटर प्रेजेंट इन दैट, ठीक है। तो द सॉल्यूशन इज वेरी वीक इन इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली जब सॉल्यूशन वीक है तो उसके अंदर आयंस कम बनेंगे, बट व्हेन द सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन रीचेस 86%, so the solution contains enough concentrated sulfuric acid or the right amount of water which is required for the ionization of the nitric acid, because आपको पता है कि जो एसिड है उसको आयोनाइज करने के लिए आपको यू नीड वाटर, ठीक है ना। जैसे 100% जो कंसंट्रेटेड एसिड है दैट इज ऑफ नो यूज, दैट इज इनर्ट, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिकॉज इट नीड्स टू बी आयोनाइज्ड इनटू, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, it gets ionized into H plus into SO3H minus। तो जब ये आयोनाइज होगा तब ये एसिड जो है उसकी एक्टिविटी होती है, तब वो आपको हार्म करता है, नुकसान तब पहुंचाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यू नीड राइट अमाउंट ऑफ वाटर टू गेट द एसिड आयोनाइज। तो जब इस रेंज में आता है तो द वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इज एग्जैक्टली सफिशिएंट टू प्रोड्यूस दिस आयोनाइजेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। जबकि जब इससे ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली अगेन अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो उसमें ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, बिकॉज व्हेन वी हैव 100% सल्फ्यूरिक एसिड द अमाउंट ऑफ वाटर वुड बी वेरी लेस। इस पॉइंट के बाद अगर आप ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये कर्व में शो नहीं किया हुआ, बट द कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन परसेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड वुड स्टार्ट डिक्रीजिंग अगेन। ये यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आगे जो नेक्स्ट जो है वाटर जो है वो जब सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा वी हैव वेरी लेस वाटर अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट, एंड जब वाटर नहीं होगा तो वी डोंट हैव आयोनाइजेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। तो ये जो चीज़ है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप इसको अच्छी तरह रीड आउट कर लें, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, otherwise we would close the session today.
1 अक्टूबर। चले ठीक है, क्लास ओके इंशाल्लाह फिर। अच्छा नेक्स्ट, बाय द वे नेक्स्ट वीक से आई थिंक योर सीआर टोल्ड मी दैट दिस फ्राइडे का जो हमारी क्लास होगी, हम थर्सडे को बिटवीन 2 and 4, मे बी 2 से 3 या 3 से 4 हम इसको कंडक्ट करेंगे और फ्राइडे की फिर क्लास हम उसको मूव कर लेंगे ऑन थर्सडे। तो आई होप के आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई इश्यू है तो आप सीआर के साथ या मेरे साथ डिस्कस कर लें, ठीक है। तो अच्छा तलहा, अगर सुन रहे हो आप, तो अगर इस तरह पॉसिबल ना हो तो फिर आप फ्राइडे को 8 o'clock हम कर लेंगे क्लास, ठीक है। तो बेस्ट वुड बी ऑन इट इफ इट इज ऑन थर्सडे। सो अब मैं दोबारा से, स्टूडेंट्स हैं जिनका पीएलओ अचीव नहीं हुए, वो मैंने सीआर को लिस्ट दी हुई है, तो प्लीज़ वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें। मुझसे अभी तक सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो विद इन नेक्स्ट वीक आप मुझसे कांटेक्ट करो। अदरवाइज फिर आपका वो रिजल्ट फाइनल हो गया तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी अगर आपका पीएलओ क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो मुझसे कांटेक्ट करें लाजमी, ठीक है। तो चलें क्लास टिल नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।